खोल के बंद करा है, और गीजर खोला है, बंद कर दिया। एक तो मैं बता रही हूँ डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन की, मुझे ही कह रहे हैं कि चेक करो। वाह भाई वाह। అలా బ్యాగ్ లో కాగితాలు ఉంటాయి. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग मैडम। कैन आई प्लीज म्यूट करिए सबको बैक एंड से।
पीछे तरफ से सारे ट्रेनिंग्स को म्यूट कर दीजिए मैडम। ओके सर। सर डाल दिया मैंने सबको म्यूट पे। Orul madam, good morning madam. Can you hear my voice? यस सर। Okay madam, can I start? यस सर। Thank you madam. Good morning all of you. Morning friends. Welcome to today our Visual Basic for Applications virtual classes. आज का Visual Basic Applications क्लास के लिए मैं आप सबको स्वागत कर रहा हूं मैं। The same way, every day I'm telling, once again, I'm thankful to all my PGT staff members as well as NIMI staff members. In DGT IT cell was created this type of virtual class concept. At the same time, NIMI staff members, Director Dingra sir as well as technical officers also worked in the back end. I'm thankful to those people also. And thankful to my co-staff who cooperate with me. They're also sending my meeting schedule to their trainees groups. Those are V. Babu sir Indore, Raju Kannam sir Bangalore, Bannabag sir Hyderabad, Rinku madam Jaipur, Tulika madam Panipat, Sanjay sir Vadodara, Hemlata madam Indore, Jyoti Bandari madam Mumbai, Sam Sivaraj Mumbai, Tarika madam Allahabad, Silva madam Trivandrum, Niyogi sir Kolkata, and Gaurav sir Dura, as well as my special thanks to all my trainees who are joined for today this virtual classes. Friends, myself B.A. Gurulu, vocational instructor. My mobile number is 9015983271. Email ID is gurunvj@gmail.com. This virtual classes was delivered from NSTI for Women Noida, National Skill Training Institute for Women Noida, through NIMI Zoom app. So friends, in last class, we have discussed about the decision maker statement, if statement. So once again, I want to give a small little bit recap. Because our motto is, my aim is, we want to go through practicals. In our DCT as well as NCVT pattern is 30% theoretical and 70%, or 40% theory and 60% practical. So I want to give the clear clarification through practicals only. We already discussed about what is meant by VBA and introduction, Visual Basic, Basic Language, Visual Basic Language, and VBA for applications. Then after that, we have discussed about
basic builders like data types, operators, variable types, and how to create a variables and rules for variables, constants types. At the same time, how to add a developer into our Visual MS Excel menu bar. पिछले बहुत सारे क्लासेस में हमने मतलब ये डिस्कस किया है, मैंने समझाया बेसिक लैंग्वेज के बारे में, फिर साथ साथ विजुअल बेसिक के बारे में, फिर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस के बारे में भी हम बातचीत किए हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। इतना ही नहीं, उसके साथ एक लैंग्वेज सीखने के लिए उसका बेसिक ब्लॉक्स के बारे में फंडा क्लियर होना चाहिए, बात मैंने समझाया आप लोगों का। फिर उसके द्वारा हमने क्या कुछ फंडामेंटल चीज डिस्कस किया। हमने क्या है वो फंडामेंटल चीज, तो विजुअल बेसिक क्या क्या डाटा टाइप्स को सपोर्ट करते हैं, क्या क्या ऑपरेटर्स इसका अंदर है, फिर वेरिएबल का मतलब क्या है, से वेरिएबल्स को कैसे बना सकते हैं हम कोडिंग के अंदर, सिंटैक्स, रूल्स, फिर कॉन्स्टेंट्स, अलग अलग कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिस्कस किया हमने। फिर डेवलपर टैब को हम मेनू बार के ऊपर कैसे लेकर आ सकते हैं। इतना ही नहीं है, इसका साथ में सेल रेफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया है, 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस, 3 अलग अलग, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड। फिर VBA में भी मैक्रोस कैसे बना सकते हैं हमने ये भी डिस्कस किया है। फिर मैक्रो द्वारा कोडिंग समझा मैंने। फिर साथ साथ एक सिंपल प्रोग्रामिंग स्वैप, हाउ टू इंटरचेंज 2 वेरिएबल्स इन MS Excel शीट। MS Excel का 2 सेल्स का अंदर कितना नंबर के नीचे, तो 2 सेल्स के अंदर वैल्यूज को कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं हमने ये भी डिस्कस किया। फिर इसके बाद फिर सब प्रोसीजर एक अपना प्रोग्राम VBA विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर कैसे लिख सकते हैं ये चीज डिस्कस किया हमने। फिर बाद में मैसेज बॉक्स के बारे में, इनपुट बॉक्स के बारे में बातचीत की हमने। फिर मैसेज बॉक्स के अंदर मल्टी लाइन्स कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, फिर मैसेज बॉक्स के अंदर स्ट्रिंग का साथ में वेरिएबल, इत्यादि चीजों को हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। फिर पिछले 2 क्लासेस से हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट, डिसीजन मेकर। एक हमारा डिसीजन मेकर अलाउज द प्रोग्राम टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो ऑफ द स्क्रिप्ट और वन और सेक्शन। मींस एक प्रोग्राम के अंदर यानी कोडिंग के अंदर एक से अधिक लाइंस यानी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इफ स्टेटमेंट यानी डिसीजन मेकर को हम काम में लेते हैं। एग्जीक्यूशन इज गवर्न बाय वन और मोर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एग्जीक्यूशन एक से अधिक कंडीशन से भी साथ भी कर सकते हैं या अकेले एक सिंगल कमांड के साथ भी लॉजिकल कंडीशन। इफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकर का स्ट्रक्चर ये है। That means first of all you can try to understand the concept of the if. First it can check the condition is true, then it will enter into the if block, then execute the given number of statements, then after that it reaches the end of. If condition is false, it will try to find out where the end if. Need not go to the if block. The controller will directly pass on to the end if statement. Then it will try to execute the after the end if statements. मेरे कहने का मतलब क्या है, if स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करते समय पर if का आगे हमें से एक कंडीशन लिखना पड़ेगा, लॉजिकल कंडीशन। फिर लॉजिकल कंडीशन को if स्टेटमेंट सबसे पहले निर्धारण यानी डिटरमिनेशन करेगा, चेक करेगा कंडीशन दिया गया कंडीशन सही है गलत है, सही है तो if ब्लॉक के अंदर प्रवेश करेगा, गलत है तो सीधे end if का आगे जाके जो भी इंस्ट्रक्शन हमने लिखा वो एग्जीक्यूट करेगा। ये है if कंडीशन स्टेटमेंट्स। सो इट चेक्स द गिवन कंडीशन, मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को। फिर इस तरह एग्जीक्यूट करते रहते हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। फिर प्रैक्टिकल सेक्शन में जाना है। सिंगल इफ है ना तो क्या मतलब, कंडीशन सही है तो एक काम करने के लिए, गलत है ना तो कुछ भी नहीं करना। इसके लिए फर्स्ट सिंटेक्स, फर्स्ट टाइप केवल इफ कंडीशन, देन स्टेटमेंट्स एंड इफ, देयर इज नो एल्स पर्सन। सेकंड टाइप इज इफ कंडीशन, देन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, एल्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड इफ। Here what happened, it will check the first given condition whether it is true or false. If condition is true, it will enter into the if block and execute the if and else between given number of statements. Condition is false, then controller will enter into the else block and it will try to execute the else and end if statements. मैं सभी participants में मैं request कर रहा हूँ, I humbly request to all the participants, don't make noise in the back end as well as don't unnecessary do the charting.
मेरे पास कुछ बच्चों ने कंप्लेंट किया है, कुछ लोग फालतू मैसेजेस वगैरह ड्रॉप करते रहते हैं। प्लीज मेहरबानी से प्लीज आप बंद करिए, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। अभी क्लास चल रहा है, से वर्चुअल क्लास, तो प्लीज कोऑपरेट विथ मी। देन फ्रेंड्स, दिस इज द इफ एल्स एंड इफ स्टेटमेंट स्ट्रक्चर। सेम कंडीशन चेक करने के बाद ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक के अंदर प्रवेश करेगा, ट्रू मींस इफ एंड एल्स बीच के स्टेटमेंट्स, फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक में प्रवेश करके फिर उस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके एंड इफ का बाद। देन yesterday means last class we were discussed about the nested if ladder if statement के बारे में हमने बातचीत किया है। You can assign the number of statements means conditions through else if statement। ladder if या nested if में क्या है, हम if का साथ else if को काम में ले सकते हैं। जितना भी ही कंडीशंस आप आगे n कंडीशंस तक लिख सकते हो। अगर बाय डिफॉल्ट मीन सारे कंडीशंस फेल होने के बाद एक अलग काम करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली अपना आप तो else portion else and if, this is the default option, default and optional, जरूरत है तो लिख सकते हो। Friends, once again please concentrate here, the third one is nested if or ladder if। So if condition, first condition is true, it will execute the first block, false then it check the second condition through else if। else if means if you want to check another condition, like that you can add number of conditions। I think you people understand very well, but as a teacher it is necessary to give the recap। मैं आशा रखता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर एज ए टीचर में कुछ बच्चे नया न्यूली ज्वाइन किया तो उसको समझ में आने के लिए तो वो रिकैप मींस दोबारा समझा। तो फ्रेंड्स, इन टुडे आवर मेन क्लास इज select case statement। in other languages it is called as a switch statement। बाकी लैंग्वेजेस में क्या C++ के अंदर switch नाम से देख सकते हैं। उसी स्टेटमेंट को VBA के अंदर select case statement द्वारा परिचय किया है। another way to implement decision maker in VBA code is used to select case statements। तो if anybody having an internal doubt, किसी का पास एक संदेह है, डाउट है, तो क्या डाउट है सर जी? तो if else स्टेटमेंट तो है else if, so then what is the need of the select case statement? सर ऑलरेडी हमारा पास if else and if else if से हम नंबर ऑफ कंडीशंस को ऐड करके फिर लास्ट में else का साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर ऐसे है तो दोबारा ये सेलेक्ट केस क्यों है? इसलिए है if else में थोड़ा कंडीशन अप्लाई करने में प्रोग्रामर को, कोडिंग लिखने वाले को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगेगा, तकलीफ है। The person is not a strong background means computer background, that means logical operators or some conditions to make a combinational conditions, the person is not able to make the combinational conditions, then that time it will give us some means wrong results। मेरे कहने का मतलब ये है इफ स्टेटमेंट द्वारा नंबर ऑफ कंडीशंस को इंप्लीमेंट करते समय पर प्रोग्रामिंग लिखने वाला इंसान को अगर टेक्निकल नॉलेज ज्यादा नहीं तो बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं तो क्या है, कई बार लॉजिकल कंडीशंस कॉम्बिनेशंस मींस एक से अधिक कंडीशन साथ साथ अप्लाई करने में लिखने में उसको तकलीफ है। इस समस्या को दूर करने के लिए they are introduced select and case statements to avoid the confusion or difficult to make the combinational conditions in if else if statement। if you want to implement the same thing in easiest way, then that time you can use this as select case statement। अगर आपको इस कॉम्प्लीमेंट्स को मींस इस कंफ्यूज को अवॉइड करके अति साधारण तरीके से उसी इफ एल्स स्टेटमेंट का फंडा को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो तब आप ये सेलेक्ट केस ऑप्शन का सहायता से आसान से आप कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, सेलेक्ट केस, दिस इज द सेलेक्ट इज द रिजर्व्ड वर्ड, then case is also select space case within the bracket expression means condition, then case is condition 1 in the same way state number of statements, case is 2 second condition, the number of statements, like that you can add n conditions, and finally in last you can add case else then number of statements and select, and select is will indicate the end of the select statement। ये आखिर में जो लिखा गया एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट ये बताता है सेलेक्ट केस में सेलेक्ट केस का अंतिम लाइन है, मेरा सेलेक्ट केस स्टेटमेंट इस लाइन के बाद समाप्त हो रहा है, ये बात बताता रहता है। एंड सेलेक्ट will indicate the end of the select case statement, then you can add the number of case options, the last one is the otherwise or
default option case else. If all the above cases are fail, they cannot meet the given expression condition, then the controller automatically will enter into the case else block. Then it will try to execute the given statements line by line. Then after that, it will reach to the end of the end select statement. If any other statements is there after the end select statement, then it will continue the execution. देखिए मैं अभी हिंदी में बताना चाहता हूँ इसको. सपोज सेलेक्ट केस, फिर ब्रैकेट के अंदर हम एक एक्सप्रेशन कंडीशन दे सकते हैं. इस कंडीशन को अनुसार नीचे कंडीशंस लिखते हैं हम. केस इज कंडीशन 1, पहली कंडीशन. अगर पहली कंडीशन फुलफिल हो गया है, पूरा हो गया, सत्य हो गया, तो सही है, तो फिर केस 1 का अंदर कंट्रोलर प्रवेश करके इसको एग्जीक्यूट करेगा. अगर पहली केस गलत हो गया, सेकंड केस के साथ कंपेयर करेगा. सेकंड केस में ऑप्शन चेक करने के बाद अगर कंडीशन सही है तो अंदर प्रवेश करेगा, या तो इसी तरह नंबर ऑफ केसेस को कंपेयर करने के बाद अगर सारे केसेस दिया गया, ऊपर लिखा गया सारे केसेस फेल है, फॉल्स है, तो अपना एल्स केस एल्स ब्लॉक का अंदर प्रवेश करेगा. फिर केस एल्स का अंदर जितना भी स्टेटमेंट्स लाइन्स हमने लिखा है, एक एक लाइन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद एंड सेलेक्ट का पास पहुंचने के बाद, अगर एंड सेलेक्ट का बाद भी कुछ लाइन्स लिखा है, यूजर ने, प्रोग्रामर ने, हमने लिखा है, तो उसको भी एग्जीक्यूट करके फिर प्रोग्राम को समाप्त करें. अगर एक्सप्रेशन से दोबारा आपको प्रॉब्लम है कंडीशन वगैरह अप्लाई करने में, फिर इसको इसी तरह भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो आसान तरीके से. ये सेकंड वन, केस सेलेक्ट एंड, एक ऑप्शन दे सकते हो, एक इंटीजर वैल्यू. एंड मीन्स आप इनपुट से मांगेंगे एंटर योर चॉइस 1 2 3 4. सपोज योर चॉइस इज 1, दैट मीन्स केस इज 1. So you are selected the choice means option 1, case 1 is equal to 1. So condition fulfill होने लगा, it will meet the condition. Then controller will enter into the first block and it will try to execute this block of statements. Then after that, if another case is occurred received, then controller will be reached to the and select the statement, the last one. So friends, here is in the same way, if you have selected the second option, it will check the first option, first case 1 failed. Then it check the second case. You are also selected the case 2 and condition is fulfilled. कंडीशन मैच होने की वजह से सेकंड केस का अंदर प्रवेश करके फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा. फिर केस स्टेटमेंट आने तक, फिर लास्ट में सीधे एक बार एक केस का इंप्लीमेंट होने के बाद बाकी केस को चेक करेगा नहीं. सेलेक्ट केस ऑप्शन, इट विल एंटर द एंड ऑफ द सेलेक्ट, वो सीधे एंड ऑफ द सेलेक्ट ऑप्शन पर जाके फिर समाप्त कर. अगर सारे केसेस मींस ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 यानी केस 1 केस 2 केस 3 फेल है, तो ऑटोमेटिकली केस सेल्स का अंदर प्रवेश करेगा. फिर ये जो लिखा गया स्टेटमेंट्स को इंप्लीमेंट करके फिर एंड केस का आगे पहुंचेगा. ये लास्ट में. तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ आपका समझ में आया होगा. फिर लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया है, हम इसके मींस इफ एल्स लैडर इफ को असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल के बाद शुरू से फेल से भी लिख सकते हैं, फेल देन थर्ड सेकंड फर्स्ट, इस तरह भी वो चीज हम अभी देखेंगे. आज के क्लास में दोबारा इफ और एल्स इफ का लैडर इफ का जो स्टेटमेंट्स मींस रिवर्स ऑर्डर में चेक करेंगे, फिर साथ साथ इस के सेलेक्ट केस स्टेटमेंट को भी हम इंप्लीमेंट करेंगे. बनाना टाइम है अंदर. Okay friends, now we will enter into the VBA practical section. In last class we are discussed through nested ifs, else division also we are displayed here. We are reading 5 subjects marks and calculating the total. Then according to this condition, if a person having more than 60, then that means 60% to 60, 61 to 100 the first division, 45, 46, 47 up to 59 second division, like third division 35, 36 up to 44 third division. So below 35 means 0 से लेकर 34% तक फेल हमने डिक्लेयर किया. इसके लिए हमने कोडिंग लिखा है. सो कोडिंग देखने के लिए डेवलपर पर जाने के बाद विजुअल बेसिक पर जा सकते हैं. तो अगर वो बटन वाली कोडिंग देखना है तो इस बटन पर डबल क्लिक करेंगे हम. ये रन कर रहा है, अभी कोडिंग में जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सी द कोडिंग, जो लिखा गया कोड को हम देखेंगे. डिजाइन मोड में लिख रहा हूं मैं, डबल क्लिक किया बटन पर. दिस इज द VBA कोडिंग. So I think you people already understand this code. And friends, we want to implement this same coding in reverse manner. Reverse means first of all you can check the fail, then third,
second, then first. Okay, so I want to add another button. Develop. Once again, please, whenever you loaded the MS Excel, it will give so that menu bar means home menu is by default menu. If you want to do programming or experiment in VBA, you simply click on the developer. Then after that, click on the Visual Basic for writing the coding. Or if you want to implement the coding through a button, then click on the insert menu from developer menu. Developer पर click करने के बाद जो VBA for application VBS का मेनू बार का अंदर विजुअल बेसिक मैक्रोस आगे इंसर्ट फिर इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद जो फॉर्म कंट्रोल छोड़ के सेकंड ऑप्शन एक्टिवेक्स कंट्रोल पर अंदर बटन नाम से एक ऑप्शन कंट्रोल है, बटन पर क्लिक करके फिर अपना एक्सेल शीट पर लेकर आइए, ड्रैग करके छोड़िए, फिर एक बटन तैयार। अब इसको डबल क्लिक किया मैं, ये रहा मेरे बटन वाली ये कोडिंग। फिर मैं प्रॉपर्टीज में जा रहा हूं मैं, तो प्रॉपर्टीज में जाने के बाद कैप्शन में देखिए ये भी रिजल्ट है लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में इंप्लीमेंट कर रहा हूं मैं। रिजल्ट रिवर्स में चले, मींस उल्टा आंसर नहीं है, नेक्स्ट तो डिसेंडिंग। We are comparing the options. First of all, smaller value. Last time we are descending in higher values check किया हमने। अब least value, first smallest values का साथ implement करें। इस कोड को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं copy paste कर रहा हूँ। As a IT person, every person knows this thing. You are implemented one code, then you simply copy and paste. अभी मैं बटन 2 का कोडिंग के अंदर पेस्ट किया हूँ। फिर अभी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ जो कल का क्लास में नेम रीड किया हमने, डिवीजन स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंग्लिश मैथ्स हिंदी साइंस एसएसटी टोटल मार्क्स परसेंटेज एज इंटीजर, देन एसनेम आई एम रीडिंग दीज इनपुट पैरामीटर्स थ्रू इनपुट बॉक्स, एसनेम इज स्टूडेंट नेम, देन इंडिविजुअल मार्क्स। आई थिंक यू पीपल्स आर अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप सबको समझ में आया होगा ये चीज लास्ट क्लास का। फिर इसी को क्या है, मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स पता चल गया। फिर ओरिजिनल मैथमेटिक्स मार्क्स में प्रिंट कर रहा हूँ ताकि अगर केवल मैथ्स में 35 से कम आ गया तो 10 मार्क्स उसका बोनस मार्क्स जोड़ना चाहता हूँ, इसलिए इफ कंडीशन का चेक किया ये। फिर वो नया मार्क्स यानी 10 मार्क्स बोनस मैथ में ऐड करने के बाद असली मींस न्यू मैथमेटिक्स मार्क्स का साथ टोटल कर रहा हूँ मैं। ये टोटल करने के बाद परसेंटेज इक्वल टू टोटल बाय 5 क्योंकि वी आर कंसीडर द 5 सब्जेक्ट्स। देन अब मेरा पास टोटल मार्क्स पता चल गया, परसेंटेज भी पता चल गया है, लेकिन परसेंटेज का अनुसार मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन प्रिंट कर रहा हूँ फेल, तो इसलिए फर्स्ट डिवीजन के लिए फर्स्ट बताया मैंने, अब थर्ड फेल के लिए बताना चाहता हूँ। तो फेल कब है, इसको उल्टा लिखना है, लेस देन, आर इज इक्वल टू लिखना नहीं है, 35 से बिलो है तब तो वो फेल माना। परसेंटेज लेस देन 35 देन fail, you can declare the result as a fail. If percentage is more than 35 but below 45, so 45 35 से कम है तो फेल हो जाएगा। 35 से कम नहीं है मीन्स 35 36, बट लेकिन 45 तक फर्स्ट डिवीजन, सो परसेंटेज इज लेस देन और इज इक्वल टू 45, देन ये सेकंड डिवीजन। पर थर्ड के लिए 45 से कम है, 35 से ज्यादा है तो ये थर्ड डिवीजन। देन आफ्टर दैट suppose if a student got the score more than 45 or 40 equivalent 45 below 60, then it will be treated as second division. Else means जो एक स्टूडेंट का परसेंटेज 35 से कम नहीं है, 45 45 से भी कम नहीं है, 60 से भी कम नहीं है, मतलब 59 भी नहीं है, 60 एंड 60 से ज्यादा है तो बिलो 60 तक सेकंड
बिलो 60 भी नहीं तो इसका मतलब क्या 61 हो सकते हैं, 62, 63 अप टू 100%. So that time we are declared as first division. I am implementing the if statement, ladder statement और nested statement in ascending order में सबसे पहले छोटा वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ, फिर इसका बाद बड़ा, फिर इसका नेक्स्ट वैल्यू, इस तरह फाइनल वैल्यू. इन लेस्टेड एनियंस लास्ट क्लास में क्या किया हमने, सबसे पहले फर्स्ट क्लास के लिए चेक किया, फिर सेकंड बताया, थर्ड बताया, फेल. आज का क्लास में उसी को हम रिवर्स में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट कैंडिडेट फेलियर पास है वो चेक कर रहे हैं हम. फेल कब डिक्लेयर करेंगे, उस स्टूडेंट्स का परसेंटेज 35 से कम है तो फेल माना जाता है. अगर 35 से कम नहीं, ये केस फेल हो गया, फिर नेक्स्ट में आने के बाद, लेकिन 45 से कम है, 35 से ज्यादा होने के बाद तो इसमें आ जाएगा सेकंड में. 45 से कम है तो सेकंड थर्ड डिवीजन, लेकिन 45 से ज्यादा मींस 45 भी आ सकते इसमें, तो देन थर्ड डिवीजन मींस 60 से कम, 45 से ज्यादा है तो फिर वो है सेकंड डिवीजन. 60 मींस 45 से कम नहीं है, दैट मींस 45 हो सकते हैं, 46 भी हो सकते हैं, लेकिन 60 से कम है, इसलिए इसको सेकंड डिवीजन. अगर इन तीनों से मींस केसेस फेल है, मींस कंडीशंस फॉल्स है, तो ऑटोमेटिकली एल्स में जाएगा फर्स्ट डिवीजन. अभी हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं, रन करेंगे इसको. ठीक है, एक्सेल शीट पर जा रहा हूं मैं, डाटा मैंने डिलीट कर दिया, फेल भी है. ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज लुक एट हियर. नाउ आई एम रनिंग दिस न्यू concept result. I change my tab design mode to execution mode, then click to this result means ascending order wall second tab. So again it will ask the enter the student name. Okay, Bhanu Prasad. Enter the English marks 60, 70, mathematics 32, science 75, SSC some 40. Look at here, student name Bhanu Prasad. तो दिया गया हमने जो mark, what are the values here given, those values are printed here. The original mass is 32, below 35, condition is fulfilled if condition, 10 marks are added, 32 plus 10, 42, final marks. Then all these are total, then by 5, 57%. So 57% means below 60, due to that reason it gives the second division. That means today what we are doing, आज का क्लास में हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, जो कल हमने इंप्लीमेंट किया है, जो लैडर इफ मींस सबसे पहले हम फर्स्ट डिवीजन के लिए चेक किया, फिर बाद में सेकंड, फिर थर्ड, आखिर में एल्स में फेल. लेकिन आज का क्लास में उसी लैडर इफ को क्या कर रहे हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर से सबसे पहले फेल को चेक कर रहे हैं हम, फिर बाद में थर्ड, सेकंड, फर्स्ट. अगर मान लीजिए फेल, एक बार फेल के लिए हम डाटा एंट्री करके चेक करें. एंटर द नेम चंद्रशेखर. तो इंग्लिश मार्क्स 40, हिंदी 38 तक 36, मैथमेटिक्स 25, then science 37, SST 38. You get here Chandrasekhar 36, 40, original marks mathematics 25, again below 35, so 10 marks bonus 35, then science SST, all these total 186, percentage 37, 37 means more than 35, then after that below 45, so that is called as third. Fail means if a student overall percentage is below 35, then it can declare the fail. Okay, no problem friends, please don't make any confusion. I clear the data. I am using the second button, today button. Again I want to give run this my coding. Swati Narwal. English marks
34, चलो 35, हिंदी 36, मैथमेटिक्स 15, साइंस 20, 60, 35 और 30. Our intention is we want to check the first one whether it is fulfill or not. हमारा मुख्य उद्देश्य ये है पहली ऑप्शन फुलफिल कर रहे नहीं है, अगर परसेंटेज 35 से कम है तो फेल बता रहा नहीं है रिजल्ट, वो चेक कर रहे हैं हम. मान लीजिए एक स्टूडेंट का 36, 35 तो उसको मैथमेटिक्स ओरिजिनल 15 जो 35 होने के कारण से 10 जोड़ दिए उन्होंने 25 आ गया है, लेकिन फिर बाकी भी कम है तो ओवरऑल परसेंटेज भी 29. तो इसलिए फर्स्ट केस फुलफिल होने के वजह से इसको फेल डिक्लेयर करके फिर सीधे रिजल्ट से बाहर. मैं कैंसिल कर रहा हूँ ये, सॉरी, मैं कोडिंग दिखाना चाहता हूँ आपका ये फेल कैसे आया है. डिजाइन मोड में गया मैं, फिर इसमें डबल क्लिक किया, तब स्टूडेंट नेम मार्क्स वगैरह ये किया तो मैथ हमने 25 दिया तो बिलो 35 10 जोड़ के फिर वो दिया इन्होंने, फिर टोटल परसेंटेज. अब इसके पास आ जाएंगे कि परसेंटेज लेस देन 35, उधर तो 25 29 समथिंग आया, देखिए इधर परसेंटेज मैंने सॉरी मैंने मिटा दिया है इधर. तो फिर तो मेरे कहने का मतलब ये फर्स्ट केस बिलो 35 आ गया है तो कंडीशन फुलफिल होने लगा. फुलफिल होने के कारण से कंट्रोलर इस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट ब्लॉक में प्रवेश करके डिवीजन के अंदर फेल लिखा है. फिर एल्सिफ आ गया तो इसलिए दोबारा चेक करेगा नहीं, धीरे धीरे एंडिफ कहा है पढ़ के एंडिफ इधर आ गया, फिर इस चीजों को डिस्प्ले करना है तो इसमें क्या आया फेल, इसलिए वो फेल लिखा है. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल इंप्लीमेंट दीज थिंग्स यूजिंग सेलेक्ट केस स्टेटमेंट. हम सेलेक्ट केस स्टेटमेंट के साथ इन चीजों को हम इंप्लीमेंट करें, ठीक है. और एक चीज अगर सिंपली आपको केवल इफ एंड एल्स इफ के बारे में भी अगर और एक कोडिंग चाहिए तो एक सिंपल कोडिंग 1-2 मिनट अंदर में चेक मतलब आपको समझाना चाहते हैं. सपोज और एम इज इतना बड़ा बड़ा कोडिंग देखने के बाद छोटा से कोई मतलब नहीं बनता है. फिर भी अगर किसी न्यू स्टूडेंट है इसको अभी भी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया मान लीजिए, तो हम चेक करना है 2CH के चेक द इवन नंबर इज इवन और ऑड. दिया गया नंबर इवन नंबर और नंबर बेस संख्या है सर संख्या जो भी है चेक करना चाहते हैं हम. तो अब सपोज नंबर रीड करेंगे, गिवन नंबर सामने प्रिंट करेंगे क्योंकि रिजल्ट चेक करने के लिए. तो फ्रेंड्स तो इवन और ऑड मैसेज बॉक्स से भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रिंट करेंगे हम रिजल्ट RESULT रिजल्ट. एक नंबर रीड करेंगे हम, फिर उस नंबर को सामने प्रिंट करने के बाद रिजल्ट प्रिंट करेंगे, इवन है तो इवन, ऑड है तो ऑड. तो सेम प्रोसीजर डेवलपर पर गए मैं, फिर इंसर्ट मेनू, इंसर्ट टैब के अंदर बटन, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप दिस वन बटन, फिर डबल क्लिक, देन प्रॉपर्टीज, कैप्शन, इवन और ऑड. देन फॉन्ट अगर छोटा साइज है तो फॉन्ट को आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ये है भी डिजाइन मोड में है तो डबल क्लिक कर सकता हूँ, प्राइवेट सब कमेंट बटन. देन आफ्टर दैट फ्रेंड्स हियर सो वी नीड ओनली वन वेरिएबल dim and as integer. अभी n वैल्यू को रीड करने हैं तो सबको पता है n इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स अगेन एंटर द गिवन नंबर. जो भी चेक करने के लिए हम नंबर को रीड कर रहे हैं. एंटर द गिवन नंबर टू चेक इवन और ऑड, कुछ भी लिख सकते हैं, यूजर कन्वेंट पर्पस, यूजर प्रॉम्प्ट. एंड पता चल गया हम. फिर लॉजिक कंडीशन क्या है फ्रेंड्स प्लीज विकेट हियर. अगर कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करते समय पर शेषफल रिमाइंडर जो शेष भाग 0 है उसको हम इवन नंबर कह लेते हैं. अगर रिमाइंडर 0 नहीं है 1 आ गया तो फिर ऑड नंबर बता दो. किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते समय पर
तो दो ही शेषफल आएंगे, रिमाइंडर्स दो ही हैं, 0 या 1, ठीक है। इफ यू आर डिवाइड एनी नंबर बाय 2 वी कैन गेट ओनली 2 रिमाइंडर्स, one is 0, second one is 1. If the remainder is 0, तब नंबर डिविजिबल बाय 2। एक नंबर को 2 से डिवाइड करते समय पर दो ही संभावना है, एक तो 0 आ सकता है शेषफल रिमाइंडर, या 1 1 आ सकता है। अगर 0 आ गया तो फिर इसको कहते हैं हम इवन नंबर, अगर 1 आ गया तो कहते हैं हम ऑड नंबर। तो फ्रेंड्स ये इसको का हम कैसे मींस इंप्लीमेंट करते हैं ये चीज। तो रिमाइंडर 0 1 किसके लिए, अब एमएस एक्सेल में सर वीबीए के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ऑपरेटर्स में क्या है, स्लैश इज यूज्ड फॉर, इधर लिखते हैं दिस वन ऑपरेटर यूज्ड फॉर डिवीजन, कोएफिशिएंट, एज ए रिजल्ट, ठीक है। एमओडी और परसेंटेज ऑपरेटर, मॉड्यूलेटर is used for to consider remainder as a result, REMIN here, remainder as किसी भी नंबर, कोई भी नंबर को किसी नंबर से भी डिवाइड करते समय पर अगर डिवीजन ऑपरेटर की जगह पर स्लैश की जगह पर परसेंटेज या तो एमओडी मॉड्यूलेटर ऑपरेटर आपने यूज किया तो फिर वो शेष बल यानी रिमाइंडर शेष भाग को रिजल्ट माना जाता है, will consider the remainder as a result। तो that means suppose इंटीजर में अगर मान लिया 5/2 जो 2.5 अगर राउंड अप कर लिया मान लीजिए हमने 3, तो देन रिमाइंडर मींस 1 देगा 2 देने के बाद। इसको फिर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम, ये तो सिंपल डिवीजन, क्या किया हमने 5/2 राउंड अप कर दिया मैंने, डोंट मेक एनी कंफ्यूज, शेषफल में दिखाना चाहता हूं आपको बस। अभी क्या है 5 MOD 2, तो कैसे लिखेंगे हम, सपोज एक्सेल में, साधारण एक्सेल में इज इक्वल MOD mod फंक्शन 5/1, देन 5 इज द ऑड नंबर। इसी को हम कोडिंग में इंप्लीमेंट करें। तो आई एम रेडी फॉर राइटिंग द कोडिंग। तो फ्रेंड्स यो तो n पता चल गया हम, लेकिन चेक कर रहा हूं मैं इफ जो नंबर हमने कीबोर्ड से रीड करते हैं तो इसको डिवीजन करेंगे, तो n mod mod इज इक्वल टू 0। अगर शेष भाग 0 है तब इवन नंबर मान, n mod 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिवीजन is n/2, if the remainder is equal to 0, शेषफल यानी शेष भाग 0 है तब क्या है, इसको हम डिक्लेयर करते हैं इवन नंबर। तो डायरेक्ट सेल में लिखेंगे हम, सेल में से लिखने से पहले मेरे पास नंबर पता चल गया तो फर्स्ट सबसे पहले मैं नंबर को डिस्प्ले करता हूं, मैं गिवन नंबर कहाँ डिस्प्ले करना, B3, सो B3 है तो इधर B3 पर डिस्प्ले करने के लिए RENGE रेंज विद इन द डबल कोटेशन B3 ब्रैकेट 1 देन वैल्यू इज इक्वल टू n। जो नंबर हम रीड कर रहे हैं कीबोर्ड से वो एक्सेल शीट पर प्रिंट कर रहे हैं हम, अब चेक कर रहे हैं इफ का साथ। तो अब आवर एम इज टू डिटरमाइन टू चेक द गिवन नंबर इज इवन और ऑड, दिया गया नंबर इवन नंबर और ऑड नंबर ये बता रहे हैं। तो इफ n mod is equal to 0 then what happen, इवन नंबर। सो ओ इवन नंबर बात कहा बताना है हम, रिजल्ट के बारे में। सो रिजल्ट का जगह पर रिजल्ट इधर, सो दैट मींस B4 पर बताना है इवन नंबर। सो RENGE रेंज ओपनिंग ब्रैकेट डबल कोटेशन B4 डबल कोटेशन मींस रेंज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, स्ट्रिंग है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम इवन number, else means ऊपर जो दिया गया कंडीशन फेल, अब वो कंडीशन फेल
then if you want to mention odd number, then automatically it will enter to the else block. अगर ऊपर वाली कंडीशन फेल आएगा तो ऑटोमेटिकली एस ब्लॉक के अंदर प्रवेश करेगा उसी लोकेशन में, यानी B4 का अंदर हम बताना है। सो दिया गया नंबर ऑड नंबर है एंड इफ तो लिखना है। ओके फ्रेंड्स, आई वांट टू चेक दिस कोडिंग, मैं चेक कर रन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। जैसे रन कर सकते हो ना तो एक्सेल शीट पर जाके आप लोगों को पता है तो डेवलपर पर जाइए, ये डिजाइन मेड को हटा दीजिए, फिर इस पर क्लिक कीजिए, एंटर द गिवन नंबर टू चेक द इवन और ऑड। सपोज इफ आई एम गिविंग 10 तो 50 इवन नंबर। अगर आपको रिमाइंडर प्रिंट करना चाहते हो तो इसे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या दिया गया नंबर इवन और ऑड बताना। 22 25 50, so remainder is 0 even number. Again we want to check another number 75, दिए गए नंबर 75 प्रिंट किए उन्होंने, ऑड नंबर। सिंपली 4 5 you can give any number, suppose 7, enter odd number, 8 or 6, enter। प्लीज look at here, result will be changed। जो नंबर हम इनपुट से देते हैं वो नंबर प्रिंट कर रहे हैं, साथ साथ रिजल्ट भी बता रही है इवन और ऑड। तो मेरे कहने का मतलब क्या, मैं डिजाइन मोड में जा रहा हूं दिखाने के लिए, वी आर इंप्लीमेंटिंग इफ एंड एल्स पोर्शन। द प्रीवियस कोडिंग वी आर इंप्लीमेंटेड ओनली द इफ मैथ कंडीशन, ओनली द कंडीशन इज ट्रू, देन ओनली इट कैन ऐड द 10 बोनस मार्क्स इन पर्टिकुलर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स। अगर पिछली क्लास प्रोग्राम में हमने ये चेक किया है, अगर मैथमेटिक्स में किसी बच्चों का मार्क्स 35 से कम आ गया है तो 10 मार्क्स अपना आप ऐड करना चाहते हैं, बोनस मार्क्स। सो whenever the criteria is made means fulfill, the given criteria means m is less than 35, that means mathematics marks below 35, then m is equal to m plus 10। तो 10 मार्क्स ओरिजिनल मार्क्स के साथ जोड़ के फिर नया मार्क्स उसी मैथ सब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेगा। तो सर दोनों m में है तो कैसे स्टोर कर रहा है ये, लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया। whenever there is equal will occur, then compiler or interpreter will try to implement the right side portion। जहां पर सेम वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहा है लेकिन कंफ्यूजन है, अगर m में इसमें भी 30 इसमें भी 30 तो फिर 35 कैसे, पहले इधर भी जो दिया मैंने 20, सो m वैल्यू 20 लेस देन 35, कंडीशन ट्रू, बट हियर भी 20 शुरू में लिखते फिर इधर भी 20 लिखते तो 20 प्लस 30 40 हो गया, 30 हो गया, लेकिन इधर ऑलरेडी 20 है, वो कैसे होगा ऑपरेशन। डोंट मेक एनी कंफ्यूजन। उसके लिए मैं क्या बताऊं, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर सेम वेरिएबल्स लिखा आपने m is equal to m plus 10, then what happened is equal to is the assignment operator, so compiler or interpreter will try to implement the right side portion first। so पहली बार क्या करेगा, राइट साइड जो भी लिखा हमने इसको एग्जीक्यूट करेगा तो रिजल्ट को लेफ्ट साइड पास करेगा। दैट मींस मैथमेटिक्स मार्क्स 20 है तो 20 plus 10 30 will be stored in the m mathematics। so here my focus, my aim is if the condition is true then only it will implemented this portion, if condition is false then controller will pass on to the end if statement। कंडीशन फॉल्स होने के बाद क्या कर रही है, इफ ब्लॉक के अंदर प्रवेश ना करके एंड इफ का आगे जाके जो भी हमने लेकर उसको इंप्लीमेंट करता है। ओनली इफ स्टेटमेंट, देन इवन और ऑड नंबर में क्या है, इफ एंड एल्स। इफ एंड एल्स के लिए 2-3 लिखा हमने, प्लीज वेट, यस सर नो, लास्ट क्लास में हमने चेक किया। फिर ये भी है इवन और ऑड। देन आफ्टर द डिविजन के लिए हमने लिखा नेस्टेड इफ्स के लिए। देन फ्रेंड्स नाउ we will implement the select and select case statement। okay, by using this select case statement, simply input box also, first of all friends please look at here, now we will enter into the new concept that is today select case statement। ब्रैकेट में एक्सप्रेशन बताया हमने और एंड, देन केस इज, देन कंडीशन, स्टेटमेंट्स
like that. Another condition statements. Finally, case Philip Chunana ELSC case else statements. Then and select. This is a structure. So we want to implement this one. Please look at here. Anji, please don't make noise. Arul madam, please कृपया mute करिए. So friends here. So we want to select means display some group wise subjects. If a student want to get admission, COPA, DTP, or suppose CSA, anyone, or simply group name. We want to select a group name. उस समय जब ली थी तब भी इतनी हाइट थी मुझे लगता है हमको चेंज कर देना चाहिए. क्लिप एक्सटेंशन म्यूट చేయలేట అందరికి. समझ नहीं आता. हां जीन्स डालने से नहीं है. अरे गर्मी लगती है यार. पजामा डालना है. ఇది పాపా ఆర్ల్ మేడం ఫోన్ చేయరా. Okay friends, please don't make noise. देखिए select group. तो selection इतना गंदा पपीता है उसका क्या है. जब मैं लानी है थी. आप तो दे आए ना, ला क्या नहीं रहे तो उसने एक बार तुमने का मेरा दिमाग खराब. तो मैंने दो खाए मेरे को अच्छा लगता लेकिन मैं ऐसे नहीं लेती. मेरे को कोई फल अच्छा लगता तो मैं लेती, वरना मैं लेती नहीं. तो शक्ल selection of CTS groups. Again, student suppose inquiry asking, then suppose he was selected, then subjects trade. After that SVB is subjects. दो तीन subjects लिखेंगे बस. Subject 1, subject 2. बस इन्हें दो subjects बताएंगे. Okay, friends, please. Now, again we are go to the developer menu. Then after that insert, then button. This button, caption, trade selection. In my coding window ready. So first of all, I want to read the student name. S name as string. Then after that, I want to read the options. For options purpose, dim OPT as integer. And friends, I want to read the option OPT is equal to through input box. Then after within the quotation again select your choice or option, whatever it may be. Select your choice. ब्रैकेट में क्या अभी सपोज 3 के समय नहीं है, 3 ग्रुप्स के लिए लिखेंगे 1 2 3. क्लोज ब्रैकेट बंद. अब नीचे मेनू डिस्प्ले करना चाहता हूं मैं, तो मेनू डिस्प्ले करने के लिए क्या है, concatenate operator and symbol VB new line. We are not very well about this one. VB new line, then and operator. After that
1. Suppose COPA, then it is closed. Then I want to make it copy paste. One is COPA, then VB new line. Second one is DTP. And after that, third one is ESN, other thing. IBM, Advanced Diploma. तीन ऑप्शंस है. 4 is exit. अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं. ये तो 4 से जो भी अधिक नंबर दिए हैं, मान लीजिए 4 to 5. Again, this one is the third का बाद 4 exit, से बाहर आना है. क्लोज नहीं किया मैंने, तो क्लोज कर रहा हूं मैं ब्रैकेट का साथ. The quotation is required. 2 DTP, then 3 advanced diploma है. 4 is exit, or more than 4 also, any number. Okay, no problem. Suppose you already have the means option. First of all, sorry हम भूल गए, S name, student name भी पूछना है. S name is equal to input box. Then after that, enter your name. Then option. We want to implement the select case option. Then SELECT select case in the bracket and or option. Just we are discussed here. Then case 1 simply. Case 1. Then ट्रेड हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल का अंदर. कौन सी ट्रेड इन्होंने सेलेक्ट किया है, तो TRADE ट्रेड एज ए स्ट्रिंग. देन हियर आल्सो TRADE ट्रेड. अगर 1 सेलेक्ट किया यूजर ने, ऑपरेटर ने, इसका मतलब क्या, ट्रेड का अंदर उन्होंने कोपा सेलेक्ट किया है. ठीक है, सब्जेक्ट्स लिखेंगे अगर समय है तो. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड. देन स्ट्रिंग्स का अंदर भी है डिम सब्जेक्ट SUB1, SUB2, SUB3 एज स्ट्रिंग. 3 सब्जेक्ट्स लिखना चाहते हैं हम, तो इसके अंदर SUB1 इज इक्वल टू सब्जेक्ट्स 1 में क्या लिखेंगे. सपोज विंडोज, सब्जेक्ट 2, MS Office, subject 3. You can mention any one, VBA or JavaScript. So many subjects are there. Till VBA. Case 2. अभी हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे. This is the main advantage of the IT persons. Case 2. दूसरी केस मीन्स स्टूडेंट चाहता है DTP में एडमिशन. If the student want to take admission for DTP, he want to know the subjects. Suppose Windows is there, PageMaker, Word. Case 3, IBM. So IBM Advanced Diploma in the bracket IBM the trade. सपोज मान लीजिए इसको चलो चेंज कर देंगे. Linux networking web design. केस 4 ये ऑप्शनल है. अगर ये तीनों के अलावा कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो यूजर, ठीक है, सो थैंक यू, नेट विजिट वंस अगेन, इस तरह कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मैसेज हम लिख सकते हैं. तो वो लिखने के लिए ये तो मैसेज बॉक्स के अंदर लिखेंगे, या तो
वो ट्रेड के अंदर यू आर सेलेक्टेड रॉन्ग चॉइस। ट्रेड में यू नॉट सेलेक्टेड एनी ट्रेड। उन्हें उसके अलावा कुछ और नंबर दिया ना, 1 2 3 के अलावा 4 5 6 7, एक्चुअली अप टू 4 तक दे सकते हैं, लेकिन अदरवाइज में सारे आ जाएंगे इसमें। एनी ट्रेड मींस यू आर नॉट सेलेक्टेड एनी ट्रेड, जो दिया गया ट्रेड में से अपने किसी कोई भी ट्रेड सेलेक्ट नहीं किया। फिर अब इसको क्या है, फोर्थ के लिए सॉरी हम बोलिए केस एल्स लिखा हमने, अगर वो ऑप्शन से 3 से अलग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया। फिर एंड सेलेक्ट, एंड ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट। अभी तो फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, कल के क्लास में हर रोज बता रहा हूं मैं कोडिंग के अंदर क्या है फंडा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल, सेकंड वन यू कैन रीड द इनपुट पैरामीटर्स, दूसरी क्या है वेरिएबल्स को रीड करना पड़ेगा कीबोर्ड से। फिर थर्ड वन इज टू मेंशन द कोडिंग करेक्टिंग सम कैलकुलेशंस व्हाटएवर इट मे बी। तीसरी ऑप्शन में क्या है कैलकुलेशन भाग है, जो भी कैलकुलेशंस है वो करना है इफ से, सेलेक्ट केस से, लूप से, किसी भी से भी। देन फोर्थ वन इज रिजल्ट आउटपुट प्रिंट करना, डिस्प्ले करना। अब हम डिस्प्ले कहाँ करना है एक्सेल सीट पर। एक्सेल सीट पर क्या फर्स्ट नेम कहा B4 पर डिस्प्ले करना है, B5 पर ट्रेड। तो B4 पर हमने क्या है RANG रेंज डबल कोटेशन B4 क्लोज ओपनिंग ब्रैकेट देन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू S नेम स्टूडेंट नेम, देन कॉपी पेस्ट B5 ट्रेड प्रिंट करना है। लेकिन जो वेरिएबल हमें काम में लिए वही वेरिएबल लिखना पड़ेगा। But which variable you are used in a particular purpose, you please write the same variable. Don't change the spelling mistake. Means spelling name change किया तो फिर variable not found some mistakes देख सकते हैं। Okay, trade पता करेगा। अभी subject 1 print करना है, तो कॉपी क्या इसके नीचे means B5 का बाद B6, B6 में क्या print करना है subject 1 SUB1, then after that B7 subject 2, then B8 subject 3. The person is selected wrong option, no? Then it in trade location it will display only means you are not selected a proper trade or something. अगर आप ये मेंशन करना चाहते हैं इसके अंदर तो subject 1 subject 2 डैश डैश कर सकते हैं, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। कॉपी किया मैंने, फिर नीचे आ गया है। फिर subject 1 में कि इन्होंने किसी को ट्रेड को भी सेलेक्ट नहीं किया है तो स्पेस लगा देंगे, थैंक्स स्पेस। So sorry for the interruption. Actually, time हो रहा है. हाँ मैडम, I wind up within 2 minutes. I properly conclusion. Please give me 2-3 minutes. Already 3 minutes is there. I will try to finish within that time. Friends, please look at here. My coding is finished. I want to run this one. So again, I will enter into the Excel block. Then I turn this design mode into execution mode. Then I click here the command button. Enter your name. You can enter any name. Anchal Kumari. You get here, select your choice. 1 COPA, 2 DTP, 3 Advanced Diploma, 4 XAT. Suppose if I'm selected 1, enter. You get your name, Anchal Kumari, trade COPA, subject 1 Windows, subject 2 MS Office, subject 3 VB. You can run anytime, number of times. Here you can enter here any other name. Purnachand. Want to enter your second. Name is Purnachand, trade is DTP, Windows, PageMaker, Corel Draw. You can enter any other name. Suppose Simran Dubey. So whatever it may be. Third option. Name is Simran Dubey, Advanced Diploma, IBM, Linux, Networking, Web Design. So we are implementing the select case option. So now I am giving some other name.
fourth one, or suppose more than 4 also it can accept it 8. Then what happened? A rule, you are not selected any trade. So trade subject 1, subject 2, we are mentioned only blank space. So due to that reason here there is no result. So we are selected the last option, or more than 4, 5, 6, 7, 8 up to जो भी है. So it can display the result like this. So once again I will show my code and sorry. Friends, this is my code. We are implementing the select case option. It is another way to implement nested if, later if statements. Okay. So first of all, you are declare student name trade as a string, क्योंकि एक student एक trade का अंदर subjects जानना चाहते हैं, तो first student name read करेंगे, फिर trade कौन सी trade में, फिर बाद में तीन subjects को display कर रहे हैं हम, subject 1, subject 2, subject 3, ये भी strings है, फिर बाद में option read कर रहे हैं हम choice, तो ऑप्शन इंटीजर, सो dim opt as इंटीजर. देन sname स्टूडेंट नेम रीड कर रहे हैं हम, इनपुट बॉक्स एंटर योर नेम, ये तो 3 दिन से लगातार लिख रहे हैं. फिर ऑप्शन इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स सेलेक्ट योर चॉइस, ये फर्स्ट लाइन. फिर वीबी न्यू लाइन होने के कारण से फर्स्ट लाइन छोड़ के सेकंड लाइन पर आएंगे. फिर 1 कोपा कोटेशंस के अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखा वो डिस्प्ले करेगा. फिर वीबी न्यू लाइन थर्ड लाइन पर आएंगे. फिर 2 डीटीपी, फिर वीबी न्यू लाइन फोर्थ लाइन पर आके, फिर 3 एडवांस डिप्लोमा, फिर वीबी न्यू लाइन फिफ्थ लाइन पर आने के बाद 4 एग्जिट, ये एज इट इज इनबॉक्स के अंदर डिस्प्ले करेगा. फिर सेलेक्ट केस ऑप्शन, जो ऑप्शन हम रीड कर रहे हैं वो ऑप्शन वेरिएबल के अंदर, वो ऑप्शन अगर 3 दिया तो इसके साथ कंपेयर करेगा. केस 1 हमने दिया 3, 1 इज इक्वल टू 3, नॉट इक्वल, केस फेल हो गया. फिर सेकंड केस पर आने के बाद 2 हमने सेलेक्ट किया 3, सो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, सो कंडीशन फेल. देन इट विल गो टू द नेक्स्ट केस 3, you are also selected the 3, so 3 is equal to 3, condition true, controller will enter into this block. Then trade is equal to advanced diploma, then subject 1 Linux, subject 2 networking, subject 3 web designing. The transfer करके means this is the execution calculation spot. Then after fulfilling one case, the controller is there is no need to check the other cases or else case option because it is already fulfilled. Then controller will try to read the where is the end select statement. लाइन बाय लाइन प्रति लाइन को पढ़ेगा, लेकिन ये सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट केस इनमें से किसी लाइन का अंदर नहीं होने के कारण से फिर रीड करके इग्नोर करके आगे आएगा. फिर सेलेक्ट केस एंड सेलेक्ट आने के कारण से फिर एंड सेलेक्ट का आगे जो भी लिखा है उसको इंप्लीमेंट करते हैं एग्जीक्यूशन. सो रेंज 5 सॉरी B4 के अंदर डॉट वैल्यू B4 सेल के अंदर लिखने के लिए बता रहे हैं हम. क्या लिखना है? एस नेम क्या है? स्टूडेंट नेम. स्टूडेंट नेम कहाँ पर एक वेरिएबल है, हमने इनपुट से रीड करके रखा है, वो वेरिएबल वैल्यू B4 सेल B4 के अंदर इधर प्रिंट कर रहा है. फिर बाद में क्या, फिर B5 का नीचे जो ट्रेड दिया वो ट्रेड क्या, एडवांस डिप्लोमा नेटवर्क IBM जो भी वो है. फिर सब्जेक्ट 1 में लाइनक्स प्रिंट करेगा, सब्जेक्ट 2 में नेटवर्किंग, सब्जेक्ट 3 में वेब डिजाइनिंग, फिर एंड सब प्रोग्राम समाप्त. So this is the way of the execution of this program. यही है कंप्यूटर मेन मेमोरी में रैम में प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट करते, वो तरीका मैंने आपको समझाया है, तो उसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए तो पता होने के लिए प्रोग्राम. तो मैं जूम कर रहा हूँ, तो आप लोगों फोटोज खींच कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, जो भी है. फॉन्ट वगैरह बढ़ा रहा हूँ मैं, मेरा जो दिया गया समय समाप्त हो गया है. निमी से इंस्ट्रक्शंस मिल गया, आई रिसीव्ड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द निमी. सो फ्रेंड्स प्लीज, दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन अप टू दिस वन. This one is the reading. Sir, हाँ मैडम प्लीज. So then friends, case implementation, you please 2 मिनट मैडम इनका फोटोज खींचने के लिए. Friends, please take it screenshot or photo. This is the first person up to case 1. I think you are already make a photo. Then case 2, case 3, case else and select. Then after that, this is the end select. Printing portion. First one, this is the coding private sub variable declaration, input reading, then select case option, case 1 details. If the candidate selected first case COPA, then subjects are mentioned. Then case 2, case 3, case 4, case else, DTP, advanced diploma,
or you are not selected any other trade. And select means and select finish. Then this is the result. Okay, friends. Thank you for your kind cooperation. I think you people are understand my this class. We will meet once again tomorrow, but 9 o'clock. कल का क्लास सुबह 9 बजे से है, 10 बजे को नहीं है. कृपया ध्यान दीजिए. I can share that meeting ID and timings through your faculties and your members. Please send your email ID if you need some notes or whatever it may be. Thank you once again. Thank you for all of you, as well as thank you for NIMI staff members also. Thank you, Parul madam. Thank you everyone.